Hello and welcome to my class. Now today in this video I'll be starting with a new chapter, that is understanding secularism. This is the second chapter of class 8 civics NCERT book, right? Now in this chapter we'll be discussing on secularism. Secularism, what do you mean by secularism? What are the important features of secularism that we practice in India? But before understanding secularism, I would like to discuss certain facts with you. uh, let's take the example of Hitler. Hitler was a dictator of Germany, and he killed many people who belongs to Jewish community, right? He indiscriminately killed these people on a large number. He was criticized for this also. Then we'll take an example of Israel. Israel is a modern nation state where the Israel government, they discriminate their own Muslim and Christian people of their nation. Means their native people who are following Christianity and Islam, right? Then we'll talk about Saudi Arabia. In Saudi Arabia, the non-Muslim person is not allowed to have their religious building in the country. Now, why we are talking about these examples? The reason is our today's topic is related with religion, right? To understand secularism, first thing that we need to understand is it has a link with religion. How? In the previous chapter we have discussed about that the constitution has provided certain basic rights, fundamental rights to the Indian population, Indian citizen. And under that fundamental rights we are enjoying the freedom to right to freedom of religion, right? We as a citizen of India has a right to follow any religion. There is no pressure on us to follow any particular religion. So when the government is giving us this freedom that every citizen in India is free to have any religion, कोई भी धर्म हम अपना सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो दिस मेक्स आवर कंट्री अ सेक्युलर नेशन. सो लेट्स डिस्कस दिस. It refers to the separation of religion from the state. Means देश की सरकार, देश जो है वो रिलीजन से अलग है. हमारी सरकार किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती. वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया enjoys to follow, to propagate, to interpret any religion of our choice. हम पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है. हम किसी धर्म को मानना चाहें, फॉलो करना चाहें या नहीं करना चाहें, इसके लिए हमें सरकार प्रेशराइज नहीं कर सकती. ये हमारा अब खुद का डिसीजन होगा. अगर हम किसी धर्म को नहीं भी मानते हैं तो वो भी हमारी चॉइस है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती. So, secularism is a broad idea. It refers to the separation of religion from the state. धर्म को स्टेट से अलग रखा जाएगा, धार्मिक मैटर्स को और सरकार को अलग रखा जाएगा. द गवर्नमेंट विल नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स टू अ सर्टन एक्सटेंट. नाउ क्यों किया गया ऐसा? वाई इट इज एसेंशियल टू कीप रिलीजन सेपरेट फ्रॉम द स्टेट, right? To save minorities from the tyranny of the majority group. पहला कारण ये है कि जो मॉडर्न नेशंस हैं आज के, उसमें हम हर देश में अलग अलग धर्म के कम्युनिटीज़ के लोगों को एक साथ रहते देखते हैं. और जब हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में भी अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं. देयर आर सो मेनी रिलीजियस बेस्ड कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडिया. और उनमें भी अगर हम देखें तो एक कम्युनिटी, एक या दो कम्युनिटी जो होगी वो मेजॉरिटी में होगी, मेजॉरिटी इन नंबर्स, राइट? तो ऐसे में चांसेस ये होते हैं डेमोक्रेसी में कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को डोमिनेट करना ना शुरू कर दे, उन्हें डराना ना शुरू कर दे, उन पे अपने विचार ना थोपना शुरू कर दे, इम्पोज करना शुरू कर दे.
राइट. सो ऑल दीज, इसलिए कि माइनॉरिटी को जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसके प्रकोप से बचाना है, उसकी टेरनी से बचाना है, उससे बचा उनके जो मेजॉरिटी रूल है उससे बचाना है. इसलिए धर्म को, स्टेट को अलग अलग रखा गया है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल एंड अ वेरी एप्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. श्रीलंका में सिंहल कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हैं, सिंहल भाषा बोलने वाले, और वो फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म को. वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं और जो हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उन पर अपना धर्म थोपते हैं. दे इम्पोज देयर बुद्धिज़्म ऑन, they have made Buddhism the national religion. अब आप अगर दूसरे धर्म को मानते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी बुद्धिज़्म को अपनाना होगा. ये होता है जब कोई एक मेजॉरिटी ग्रुप जो है पावर में आ जाता है और वो माइनॉरिटी ग्रुप्स में अपने विचारों को इम्पोज करना शुरू कर देता है. तो ऐसी चीज़ से बचाने के लिए धर्म को और स्टेट को अलग अलग रखा गया है. Second reason is, it is important for an individual's freedom to embrace and interpret religion of his or her own choice. अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर स्टेट इंटरफेयर करेगी तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हम जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छिन जाएगा. क्योंकि अगर किसी भी एक मेजॉरिटी ग्रुप की सरकार बनी, वो हमारे इस राइट को छीन लेगी. राइट. देयर आर चांसेस दैट द मेजॉरिटी गवर्नमेंट माइट इम्पोज देयर विल ऑन द पब्लिक. तो ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल फ्रीडम जो है हमारी किसी भी धर्म को अपनाने की, वो हमसे हमारा फंडामेंटल राइट छीना जाएगा. राइट. तो इसीलिए स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखा गया है. अब हम बात करते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म के. व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? इंडिया में सेक्युलरिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है? वन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. वेरी क्लियर थिंग. एक कम्युनिटी, एक धर्म की कम्युनिटी दूसरे धर्म के कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट ना कर सके. अगर हम इंडिया की बात करें तो हम पॉपुलेशन को अगर देखते हैं तो मेजॉरिटी इंडियंस आर हिंदू. अगर हम मेजॉरिटी में हैं तो हम किसी माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट ना करें, इसलिए हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं. यानी सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी. आपकी चॉइस है, आप कोई भी धर्म अपनाएं. सरकार फेवर नहीं करेगी, ना प्रेशराइज करेगी किसी को. राइट. Some members do not dominate other members of the same religious group. कई बारी एक ही रिलीजियस कम्युनिटी में कुछ मेंबर्स जो हैं वो दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट करने लगते हैं. ऐसा ना हो, इसीलिए सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है. थर्ड पॉइंट, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. इंडिया में सेक्युलरिज्म का एक मतलब ये भी है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करेगी. ऐसा वो इसलिए फेवर नहीं करेगी किसी भी एक धर्म को, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो हमारी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो हमसे छीनी जाएगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है. राइट. हम इन पॉइंट्स को थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस करेंगे. सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज like, share and review and subscribe my channel. Thank you.